Now, let us solve 28th problem. A sample of Na2CO3 was found to contain Na2SO4. Once again कुछ वैसा ही सवाल है जो पहले हमने करा था. Na2CO3 के साथ में Na2SO4 मिला हुआ है. 1.25 ग्राम of this sample was dissolved in water and made up to 250 ml solution. इससे 250 ml solution बना दिया गया. 25 ml of this solution, इसका 25 ml sample लिया. 25 ml of this solution required 20 ml of required 20 ml of N by 10 H2SO4 for neutralization. Calculate the percentage of Na2SO4 in the sample. अब देखिए Na2CO3 मैं पहले प्रॉब्लम फिलोसॉफी लिख रहा हूं. Na2CO3 इस सॉल्यूशन में आएगा, इस सैंपल में आएगा, इसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन होती है और वहां पर मिलता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. जबकि Na2SO4 की कोई रिएक्शन ही नहीं होती है. Na2SO4 की H2SO4 के साथ में we do not have any reaction. This is the basic philosophy. अब इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने हैं जरा देख लीजिए. इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is normality into volume in liters. So this is also equivalent of Na2CO3 in 25 ml. यह equivalent of Na2CO3 25 ml में हुए. So equivalent of Na2CO3 in 250 ml or 1.25 grams is equal to 2 by 1000 into 25 ml में इतने इक्विवेलेंट है तो 250 ml में इतने होंगे. This is the equivalent of Na2CO3 total equivalent. So moles of Na2CO3 आ जाएगा. Moles of Na2CO3 in the sample, ये तो 10 हो गया. 2 by 100 into ये इक्विवेलेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए डिवाइडेड बाय BCNV फैक्टर. Na2CO3 की एसिडिटी इधर 2 हमें बिल्कुल साफ दिख रही है. सो दिस इज द मोल्स ऑफ Na2CO3 1 by 100 मोल्स. तो वेट ऑफ Na2CO3 आ जाएगा. वेट ऑफ Na2CO3 1 by 100 मोल्स है into 106. Na2CO3 का molecular weight है 106. So this is the grams. So this is equal to 1.06 grams. So percentage Na2CO3 आ जाएगा. Percentage Na2CO3 is 1.06 upon 1.25 into 100. This is percentage Na2CO3 which is 106 upon 1.25. और मैं क्या करता हूं 0 हटाता हूं और इसको 4 by 5 कर देता हूं तो 106 into 4 divided by 5. So you'll get this equal to 424 divided by 5 or this is 84.8%. So percentage Na2SO4 would be 15.2% and percentage Na2CO3 is 84.8%. This is the percentage of the two salt present in this sample. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लीजिए. 31st प्रॉब्लम अब हम करेंगे.
हमने इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने यूज हो रहे हैं, उतने ही इक्विवेलेंट Na2CO3 25 ml सैंपल में रहे होंगे, क्योंकि H2SO4 सिर्फ Na2CO3 से ही रिएक्ट कर रहा है, Na2SO4 से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो जितने इक्विवेलेंट H2SO4 के उतने ही इक्विवेलेंट Na2CO3 के 25 ml सैंपल में। तो इससे हमें आ गए इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इन 250 ml, तो उतने ही इक्विवेलेंट Na2CO3 सैंपल में हुए 1.25 ग्राम सैंपल में। तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 से मोल्स ऑफ Na2CO3 आ गया, इससे हमें वेट ऑफ Na2CO3 आ गया। दिस इज द वेट ऑफ Na2CO3। वेट ऑफ Na2CO3 से परसेंटेज आ गया, परसेंटेज Na2CO3, परसेंटेज Na2SO4 आ गया। 31st प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए, अब इसे नोट डाउन कीजिए। Let us solve 31st problem. Two acids are titrated separately with 25 ml of one normal Na2SO4. The volume of each acid used for this complete neutralization with above mentioned solution are 10 ml and 40 ml. What volume of A and B would be mixed to produce 1 liter of one normal acid solution? देखिए, with acid A मैं कहता हूं इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो मैं कहूंगा N1V1 would be equal to N2V2. This is equivalent of acid and this is equivalent of base, और इसे हम बराबर कर रहे हैं। N1 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड हमें निकालना है, N1 या Na इंटू Va करता हूं मैं, Na इंटू वॉल्यूम इज 10 ml is equal to N2 is 1, volume is 25. So Na is 2.5 normal. This is with acid A. Then with acid B मैं कहता हूं Nb into Vb is equal to N2V2. This is equivalent of acid B is equal to equivalent of base. Acid के लिए मैं लिखता हूं Nb into 40, equivalent of base is 1 into 25. So Nb is 25 by 40, 25 by 40 normal, और I will say 0.625 नॉर्मल। इस तरीके से हमने एसिड ए और बी की नॉर्मेलिटी निकाल ली। नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी मस्ट बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ वन नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन। अब मैं कहता हूं सपोज एसिड ए का V1 वॉल्यूम और एसिड बी का V2 ml, तो एक इक्वेशन बन गई V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल टू 1000, और दूसरा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड A इज 2.5 इंटू V1 और इक्विवेलेंट ऑफ एसिड B इज 0.625 इंटू V2. दिस मस्ट बी इक्वल टू the overall normality must be 1. So 1 into 1000. यह दो इक्वेशन इस तरह से बना दी हमने। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इक्वेशन को दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो 2.5 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2.5 V2 माइनस 0.625 V2, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो 2.5 minus 1, that is 1.5 into 1000. इससे हमें V2 मिल जाएगा 2.5 minus 625. So V2 is 1.5 into 1000 upon 2.5 minus 0.625 ml, and V1 is 1000 minus V2. Solve it. 34th प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद, इसे नोट कीजिए। हमने एसिड बेस के रिएक्शन से एसिड ए की नॉर्मेलिटी निकाली,
फिर एसिड बेस की रिएक्शन से एसिड बी की नॉर्मेलिटी निकाली, फिर दोनों एसिड को मिलाने पर दोनों के इक्विवेलेंट ऐड करके ओवरऑल नॉर्मेलिटी और ओवरऑल इक्विवेलेंट से इक्वेट करा है। चलिए अब 34th प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड बेराइटा वाटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेराइटा वाटर। इसके स्टैंडर्डाइजेशन करना है एंड इन ऑर्डर टू डू इट 0.2 grams of potassium acid phthalate, potassium acid phthalate whose molecular weight is 204.2 weighted, which was then titrated as barium hydroxide. The titration required 27.80 ml of barium hydroxide. What is the molarity? And the equation is given to you, the balanced and complete reaction is given to you. 2 moles of potassium phthalate react with barium hydroxide, 1 mole of barium hydroxide to give you H2O plus 2 potassium ion plus 2 phthalate ion and a barium ion. तो मोल कंसेप्ट हो जाएगा। अब तो हम कहते हैं मोल्स ऑफ एसिड इज weight in grams upon molecular weight. This is the moles of acid. Now 2 moles of acid require 1 mole of barium hydroxide. So moles of barium hydroxide हो गया moles of acid divided by 2. This is the moles of barium hydroxide. Now if its molarity is 1, if its molarity is m, then molarity into volume in liters, 27.80 upon 1000. This is the volume in liters. This is equal to moles of barium hydroxide, that is determined above. तो इस तरीके से मोलारिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया है हमें। सो 2 से 2 कैंसिल, 0.1, सो दिस बिकम्स 1000 into 1/2042 into 27.80. This is the molarity of Baryta water. Standardization means determining the molarity. यह बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मोलारिटी हो गई। Hold it down please. Now let us solve 37th problem. 37th 48 छोटे छोटे हैं, 23 से कर देता हूं। Determine the equivalent weight of each given below if the formula weight of compound is x, y and z. देखिए Na2SO4, Na2SO4 के लिए मैं कहूंगा its basicity और acidity is 2, basicity भी 2 कहूंगा और acidity भी 2 कहूंगा। 2 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ भी कंबाइन कर सकता है, 2 H+ आयन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा x/2। और इसी तरह से Na3PO4 Na3PO4.12H2O, इसकी बेसिसिटी 3, एसिडिटी भी 3। ये H3PO4 का डेरिवेटिव है, 3 H+ के साथ कंबाइन करेगा या 3 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ भी कंबाइन करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा y/3 मैक्सिमम। और CA3PO4 होल ट्वाइस, यह
CA3PO4 होल ट्वाइस, या 6H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करेगा, या फिर 6 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ भी कंबाइन करेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा Z/6 if Z is the formula weight. This 37th प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ हमको इन सॉल्ट का एसिडिटी बेसिसिटी या देखना थी। हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, बेसिसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह H पॉजिटिव के साथ भी कंबाइन करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ भी कंबाइन करेगा। Na2SO4 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करके NaOH और सल्फेट आयन देगा, और H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके Na पॉजिटिव और H2SO4 देगा। इस तरीके से हम इसके लिए n फैक्टर 2 कहेंगे, इसके लिए n फैक्टर 3, इधर n फैक्टर 6। Now let us see 40th problem immediately. Find the amount of 98% Na2CO3 required to prepare 5 liter 1 normal solution. अब देखिए 5 लीटर 1 नॉर्मल Na2CO3 जो कि 98% प्योरिटी रखता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन 2, क्योंकि इसके लिए हम कहेंगे बेसिसिटी इज 2, n फैक्टर इज 2, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो वेट इन ग्राम्स आ जाएगा, वेट इन ग्राम्स वुड बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इतना वेट इन ग्राम्स प्योर Na2CO3 का। तो अब यह इस इम्प्योर Na2CO3 का वेट ऑफ इम्प्योर Na2CO3, this would be equal to, now this is weight of pure Na2CO3 into 1/98 into 100. This would be the weight of impure Na2CO3. इतने ग्राम impure Na2CO3 में इतने ग्राम प्योर Na2CO3 होगा, and this much grams of pure Na2CO3 would be equal to this much moles of pure Na2CO3, and this much moles of pure Na2CO3 is equal to this much equivalent of Na2CO3, and this is 5 liter 1 normal. 5 liter 1 normal से हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स हमने वेट ऑफ प्योर Na2CO3 और वेट ऑफ प्योर Na2CO3 से वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल हमने कंक्लूड कर लिया। दिस इज 40th प्रॉब्लम। छोटे छोटे प्रॉब्लम से इमीडिएटली मैं 43rd प्रॉब्लम भी कर डालता हूं, छोटा सा ही दिख रहा है यह भी मुझको, इसे देखिए ध्यान से। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय 25 ml of 0.1 normal HCl and 50 ml of 0.2 normal HCl। देखिए 25 ml of 0.1 normal HCl is mixed with 50 ml of 0.2 नॉर्मल HCl। अब देखिए इधर कोई रिएक्शन नहीं होना है, इधर तो HCl को मिलाया जा रहा है, तो इक्विवेलेंट से एड अप हो जाना। तो 25 ml 0.1 नॉर्मल में कितने इक्विवेलेंट होंगे? 25 इंटू 0.1 MEQ HCl इधर से आएंगे, प्लस इधर से 50 इंटू 0.2 इतने MEQ HCl इधर से आएंगे। Normality into volume in ml, this much milli equivalent of HCl from this solution and this much milli equivalent of HCl from this solution। अब टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने हुए जरा देखिए, 2.5 और इधर से तो मिल रहे हैं मुझको 2.5 और इधर से मुझको मिल रहे हैं 10, तो 12.5 मिली इक्विवेलेंट टोटल है। तो नॉर्मेलिटी इज टोटल MEQ अपॉन टोटल ml। तो टोटल इतने MEQ हैं और टोटल कितने ml हो रहे हैं? 75 ml। सो दिस इज द नॉर्मेलिटी।
Normality comes out to be, this is 1/6 normal. 1/6 is the overall normality. HCl के मिली इक्विवेलेंट पहले सॉल्यूशन से और दोनों दूसरे सॉल्यूशन से दोनों को ऐड कर दिया, उससे हमें टोटल मिली इक्विवेलेंट आ गए। दोनों के टोटल वॉल्यूम देख लिए, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, दिस वुड गिव द नॉर्मेलिटी ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी यह नॉर्मेलिटी होगी। 37th भी नोट करें, 40th भी देखें, 43rd भी देखें और अब 46th प्रॉब्लम करेंगे हम। या 46 प्रॉब्लम करते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl having a specific gravity of 1.19 gram per ml containing 37% by HCl will required to prepare 2 liter of decanormal solution। 2 liter decanormal solution। अब decanormal solution का मतलब होता है 1/10 normal। 2 liter of 1/10 normal। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हुए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? नंबर ऑफ मोल्स हुए नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन 1। HCl के लिए बेसिसिटी 1 होगी। तो वेट इन ग्राम्स कितने हुए? वेट ऑफ HCl हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू 36.5 ग्राम्स। ठीक है ना। अब ये 37% है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ 2/10 इंटू 1 इंटू 36.5 इंटू 100/37, दिस मच ग्राम्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ वह निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा? वेट अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, ये मैंने वेट निकाल दिया है। वेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 इंटू 36.5 इंटू 10 अपॉन 37 इन अपॉन डेंसिटी 1.19। दिस इज द वॉल्यूम इन ml एंड दिस इज द आंसर इन फैक्ट। यह 46th प्रॉब्लम हो गया। इसी जगह पर मैं क्यों ना 49th भी कर ही देता हूं। आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद कल के दिन कंटिन्यू करवाऊंगा मैं, और शायद कल के दिन इस सेक्शन 1 को फिनिश करवा दूंगा। ध्यान से देखिए, तो सिंपल प्रॉब्लम दिख रहा था मुझको, कोई कठिन नहीं है। ये जो मैंने वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये फंडा लगाया है बस। मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया मुझको। नाउ 49th, 100 ग्राम HCl having density of 1.17 gram per ml having 33.4 grams of HCl, means percentage is 33.4%। 100 ग्राम में 33.4 ग्राम HCl है, मतलब 33.4% स्ट्रेंथ है। What volume of the solution will be required to exactly neutralize 5 liter of N/10 NaOH? तो देखिए, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकल जाएगा। Equivalent of NaOH is normality into volume in liters।
This is also equal to equivalent of HCl. Equivalent of HCl would be same normality into or equivalent of NaOH. This is the equivalent of HCl. So moles of HCl आ जाएगा. Moles of HCl would be equivalent upon 1. So weight of HCl आ जाएगा. Weight of HCl is number of moles into 36.5, this much grams. This is the weight of HCl. अब उनने पूछा है what volume of HCl is required. तो अब weight of HCl solution, weight of HCl solution हम निकाल सकते हैं 36.5 वेट बाय 2. ये तो प्योर HCl का वेट है. अब 33.4 ग्राम 100 ग्राम में, तो यह वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन भी निकल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, इसके लिए मैं मास अपॉन डेंसिटी कर रहा हूं. मास मैंने निकाल ही रखा है 36.5 into 100 by 2 into 33.4 और अपॉन डेंसिटी दैट इज 1.17 ml. सॉल्व कर दीजिए. दिस वुड गिव द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन इन ml. मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं थोड़ा. 3650 अपॉन 33.4 into 2.34 ml. इसे सॉल्व कर दीजिए. आज का टास्क इतना ही. आज मैं इतने ही कराता हूं. 49 तक मैंने करे हैं. टुमारो ऑनवर्ड पे 52 से कंटिन्यू करूंगा इस चीज को, और सेक्शन 1 पहले फिनिश कर दूंगा. सेक्शन 1 में आप देखें, इट्स बेसिक नॉलेज ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट. हम अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वह सब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पर कर रहे हैं. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के आधार पर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ रहे हैं. सेक्शन 2 में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को देखेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे. एनीवे, यह 49 तक के मैंने लगभग 16-17 प्रॉब्लम्स कर दिए हैं क्लास में. बाकी के प्रॉब्लम्स आप लोग कीजिए, पैरेलली कीजिए, साथ साथ में ही कीजिए, और कल 52 से करेंगे. आज के दिन इतना ही. गुड बाय, गुड डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.